عام انتخابات میں 2 روز باقی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ہماری نمائندہ انوشا جعفری SSP سینٹرل ذیشان شفیق کے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی انوشا۔ جی بالکل، دیکھیے الیکشن میں صرف کل کا دن باقی رہ گیا اور پرسوں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ایک بہت حساس ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کئی ایسے واقعات ہوئے تصادم کے، لیکن اب جو ہے وہ چیزیں بہت کنٹرول ہو گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر فلیگ مارچ کیا گیا ہے پاک فوج اور رینجرز اور ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کا، جو کہ SSP سینٹرل ذیشان شفیق کی سربراہی میں ان کی سخت ہدایت پہ کیا گیا ہے۔ ذیشان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت چیلنجنگ ہے یہ ڈسٹرکٹ آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، کیونکہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پرسوں، تو کتنی تعداد جو ہے پولیس کی آپ لوگوں نے ڈپلوائے کی ہے؟ آپ خود بھی ہوں گے فیلڈ کے اندر ہوں گے، موجود ہوں گے، آپ تمام تر چیزوں کو دیکھیں گے، کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اگر کوئی تصادم ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے نپٹنے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سینٹرل سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے آبادی کے حوالے سے۔ یہاں پہ 4 نیشنل اسمبلی اور 9 کے قریب پروونشل اسمبلی ہیں جس کے اوپر الیکشنز ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ آبادی زیادہ ہے، پولنگ اسٹیشن زیادہ ہیں۔ ہم نے کوئی 7,500 کے قریب اہلکار اور اس کے علاوہ ساری سیکورٹی ملا کے 10,000 کے قریب سیکورٹی ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز کی بھی ہمیں سپورٹ ہوگی اور آرمی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اس میں ادا کرے گی الیکشن پروسیس میں۔ نچلے لیول پہ کچھ کارکن ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم بر وقت رسپانس کے ذریعے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے لوکل پولیس تھانہ جات اور جو QRF ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ مزید ہم نے انٹیلیجنس آفیسرز بھی اسائن کیے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پہ، تاکہ اگر کہیں بھی کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی کنٹرول کیا جا سکے۔ ذیشان شفیق صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 10,000 سے زائد جو ہے وہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، پولیس کو سینٹرل کے اندر رکھا ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے QRF بھی ساتھ ہوگی، سندھ رینجرز بھی ہوگی، پاکستان آرمی کے جوان بھی ساتھ ہوں گے۔ تو ایک طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تیاریاں مکمل ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہترین انتظامات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے پرسوں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ جی، کمپریہنسو اسکول میں انتخابی سامان پہنچاتے کیا ضلع وسطی میں بنائے گئے 1,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز میں سامان کی ترسیل کل سے ہوگی۔ تفصیلات بتائیں گے بسیم افتخار۔ آج میں نارتھ آباد بلاک M کے کمپریہنسو اسکول میں موجود ہوں، اور کمپریہنسو اسکول ہمیشہ انتخابات کے حوالے سے کافی مصروف رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات 2024 کے حوالے سے یہاں پہ کافی جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ یہاں پر مختلف جو سرکاری شعبہ جات سے کے جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر اپنے لیٹرز بھی لینے آئے ہیں کہ وہ کن پولنگ اسٹیشنز پہ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ جب الیکشن آفیسر ڈسٹرکٹ سینٹرل عائشہ ثاقب موجود ہیں، جانتے ہیں عائشہ یہ بتائے گا کہ انتخابی سامان کے حوالے سے آپ کیا ڈیٹیل دیں گی، پہنچ چکا ہے اور کب تک اس کی ترسیل شروع ہو جائے گی؟ سر، انتخابی سامان جو نان سینسیٹیو مٹیریل ہوتا ہے وہ آلریڈی ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے تھے، اس کی بلک بریکنگ ہوئی تھی کافی عرصے پہلے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ابھی بیلٹ پیپر کی بلک بریکنگ بھی ہو چکی ہے، کل ہم بیلٹ پیپر بھی لے آئے تھے، اور بیلٹ پیپر آلریڈی ROs کے پاس پہنچ چکا ہے، اور تمام اسٹاف کو جو ہے وہ آرڈر لیٹرز جاری ہو چکے ہیں۔ آج اسٹاف اٹینڈنس لگانے آیا تھا، کل سے یہ سامان کی ترسیل جو ہے پولنگ اسٹیشنز کو جاری ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انتہائی سینسیٹیو مٹیریل ہے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر، تو اس کی ترسیل کے حوالے سے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے؟ بالکل، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب پریزائڈنگ آفیسر اپنے عملے کے ساتھ پولنگ اسٹیشنز پہ جائے گا تو ان کے ساتھ باقاعدہ سیکیورٹی ہوگی۔ جو ہائیلی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں رینجرز بھی تعینات ہے، آرمی کے پرسنل بھی وہاں موجود ہوں گے، تو سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے ہماری۔ تو یہ سامان کب سے، دوپہر سے کل سے شروع ہوگا ترسیل اس کی، صبح سے ہوگی؟ نہیں، بالکل صبح ارلی ان دا مارننگ ہم اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس 13 کانسٹیٹوئنسیز ہے، یعنی 4 NA وہ اس میں مرج ہو جاتی ہیں، اور 1255 ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں، تو مطلب 1255 کے عملے کو سامان دینا اٹس اے ہیوج ٹاسک، تو یہ صبح سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ تھی عائشہ ثاقب جنہوں نے ہمیں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تقریباً جو اہم سامان ہے جس میں بیلٹ باکس ہے، بیلٹ پیپرز ہے، اس کی ترسیل کا کام کل صبح سے کیا جائے گا، اور انتہائی سخت جو اقدامات اور بالخصوص انتہائی سخت سیکیورٹی میں، بالخصوص پولیس اور رینجرز کی نگرانی میں تمام تر پولنگ اسٹیشنز پہ یہ جو انتخابی سامان ہے اس کی ترسیل کل صبح سے شروع کر دی جائے گی۔ جی، NA 246 مومن آباد کا بجلی نگر بنیادی سہولیات سے محروم ہے، علاقے میں گیس ہے نہ پانی، سڑکیں بھی خستہ حال ہو چکی ہیں۔ صورتحال سے آگاہ کریں گے جنید جاوید۔ دیکھیں جی، حلقہ NA 246 کے PS 120 میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ بجلی نگر کا یہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں پر صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ
खराब दिखाई दे रही है। अगर पसमानदा इलाका कहा जाए इस इलाके को तो ये गलत ना होगा। एतराफ के इलाकों में मोमिनाबाद का इलाका है, औरंगी टाउन का इलाका और दीगर इलाके जो है यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, पानी पीने का मसाइल है और इसके अलावा भी सड़कों की अस्तरकारी का एक बड़ा मसला है जो कि कई सालों से जो है वो हल नहीं हो सका है। यहाँ पर जो PS 120 से उम्मीदवार है अब्दुल कबीर काकड़ हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अब्दुल कबीर काकड़ साहब ये बताएगा कि मसले तो बहुत है, कैसे हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसले तो बहुत सारे हैं। ये पूछे कि क्या क्या मसला नहीं है। हर चीज हर मसला है यहाँ पर। पानी का मसला है, पीने का साफ पानी का मसला है, और गैस का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, रोड का आप देख रहे हो साहब, आपने खुद देखा है, ये इसका मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का अस्पताल, एक अस्पताल हमारे यहाँ बना पड़ा हुआ 200 बेड का, अब तक वो खंडात का मंजर पेश कर रहा है। 2-2.5 अरब रुपये इसके ऊपर खर्च भी हुआ है, अभी तक 14 साल हो गए इसके, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं इसके ऊपर। तो मसले इतने हैं कि मैं आपको बताऊं कि इस इलाके को हमारे जो गुजरे हुए हुक्मरानों ने इसको इलाका समझा ही नहीं है और हमें इंसान समझा ही नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, आपने देखा होगा, आप कराची के भी बाकी से में आप घूमे होंगे, आप थोड़ा सा इस तरफ बनारस तरफ से जब आप आएंगे या खबरगेज आप ऊपर आएंगे, आपको हर चीज डिफरेंट लग रहा है, जैसे यहाँ पे कभी इंसान रहे ही नहीं है इस पोजीशन में। तो पुरसान हाल कोई नहीं है। यहाँ पर जो आवाम है वो आवाम ये चाहती है कि अब जो भी नुमाइंदा मुंतखब हो वो यहाँ पर आए, आवाम के मसाइल हल करे और यहाँ पे जो जो मसले आवाम को दरपेश है उसका फौरी तौर पर जो है वो हल निकाले। यहाँ की आवाम ने जो है वो शिकवा किया है कि जो माजी के उम्मीदवार थे उन्होंने जो है वो इनको डिलीवर नहीं किया। ताहम इस मरतबा जब वो वोट कास्ट करने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर जो है वो वोट कास्ट करेंगे। जी। PS 103 की गलियों में बारिश का पानी ताहाल जमा है। हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर लाइन्स एरिया और PECHS के दरमियानी इलाके में मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं PECHS सोसाइटी जो कि पोश इलाका समझा जाता है कराची का। यहाँ की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। 103 ये PS लगता है और हल्का NA 237 का ये इलाका है जहाँ पर अचानक ही जो है गटर उबल पड़े हैं और तमाम जो तारिक रोड और उसके अतराफ की गलियाँ हैं वो उनके ज़ेर आब आई हुई हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज से वो सजियत में मुब्तला है। पहले तो बारिश का पानी जमा हुआ, बारिश का पानी निकला तो उसके बाद गटर उबल पड़े जो कि उनकी सफाई करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है इस इलाके की। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस इलाके की और क्यों ये इतना गंदा पानी बह रहा है, कोई पूछने वाला भी है या नहीं? तो जी ये बारिश के बाद जो है ये गटर का पानी जो है उबलना शुरू हुआ। तो ये एक दिन जो है हम समझे कि शायद बारिश का पानी है, लेकिन ये तो मुसलसल 3 दिन से जो है बह ही रहा है। तो गटर कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई हमारे हुक्मरान कोई देखने वाले नहीं है, कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है। समझ में नहीं आता हमारे इसका क्या होगा। ये PCHS इतना पोश इलाका है, इतनी महंगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, फिर उसके बाद भी जो है यहाँ की सफाइयाँ नहीं, यहाँ का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है कि गटर जो है कोई देखने वाला नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है इस मुल्क का क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा है, सबका ये कहना है कि इस मुल्क का क्या होगा। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कब से बह रहे हैं और इससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? यार ये जब से बारिश हुई है ना उस वक्त से ये बह रहा है। पीछे ये मदीना मस्जिद सामने इसके सारा वो ना गटर सारा बोल रहा है। ये पूरे ताक रोड पे पहले वाली गली में इस गली में आ रहा है। ये समझ ब्यूटी पार्लर है, ये सब रिहायश बहुत मुश्किल हो रहा है। आज जो भी लोग आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा बिल्कुल भी कोई। ये घर में पानी घुस रहा है, ये आप देख रहे हो, ये सारा घर में पानी अंदर घुस रहा है। ये अब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो ऊपर बिल्कुल ऊपर सो के आते हैं। भाई इनको चाहिए कि इनको करना, इसको देखना था वहाँ जितना भी हो रहा है वो इनको ठीक करें। बल्दियाती अमले को चाहिए कि सफाई का इंतजाम करें। अब तो इलेक्शन भी सर पर हैं और बिल्कुल लोग वोट मांगने भी आ रहे हैं यहाँ शहरियों से, लेकिन उसके बावजूद सफाई का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। इलाका मकनी ने मुतालबा किया लोग काम से कि PCHS में जो गटर उबल पड़े हैं इस मामले को देखा जाए और इनकी सफाई का इंतजाम किया जाए। NA 245 इस्लामिया कॉलोनी और कस्बा कॉलोनी के पोलिंग स्टेशंस के एतराफ गटर उबल पड़े हैं। सीवरेज के नकारा निज़ाम और कचरे के अंबार ने पोलिंग स्टेशंस को हसार में ले रखा है। मसीह जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के इनेकाद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और इस वक्त इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो जो है वो पोलिंग स्टेशन की बहाली के हवाले से है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस्लामिया कॉलोनी नंबर 1 जो कि कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में आता है। कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में अगर तमाम पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 256 पोलिंग स्टेशन है और इस वक्त इस्लामिया
कॉलोनी नंबर 1 के नौनिहाल स्कूल से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके बाहर के एरिया से। इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो खवातीन के पोलिंग बूथ हैं वो 0 हैं, क्योंकि यहाँ खवातीन वोटर्स मौजूद नहीं हैं। 4 मर्द के पोलिंग जो बूथ हैं यहाँ पे बनाए गए हैं इस पोलिंग स्टेशन में। मर्द वोटर्स की जो तादाद है यहाँ पे 1615 मर्द वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में तमाम जो पोलिंग स्टेशन थे वो हसास करार दिए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी का यहाँ पे फुकदान दिखाई दे रहा है। इस पोलिंग स्टेशन में जो कि जिसपे बज़ाहिर अब तक ताला लगा हुआ है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी निज़ाम हमको दिखाई नहीं दिया, ना ही यहाँ पे CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि इतराफ जो है गंदगी ने घेर रखा है इस पोलिंग स्टेशन को। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, इलेक्शन के दिन आपको वोट डालने यहाँ पर आना है, क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं? मुश्किलात तो ये आप लोगों के सामने सही है। ये एक अरसे से ये रोड खराब है, यहाँ से लेडीज भी गुजरते हैं और ये कब्रिस्तान पे भी लोग आते हैं। सही है, बहुत परेशानी होते है, तो वोट के दिन ये बहुत परेशानी है। एक ये पोलिंग स्टेशन तो हमको नजर आ गया कि यहाँ पे गंदगी गिलाजत है, और कितने पोलिंग स्टेशन है और उनकी सूरत हाल क्या है इतराफ में? तो उसके भी यही सूरत हाल है। ये कच्चे परश रोड है, सही है। पाइन स्कूल हो गया, वो भी कड़र मडर, उधर सारे नाले माले बेर है। सही है। एक अपना ये पाक ग्रामर स्कूल हो गया, वहाँ भी यही सारे कीचड़ मीचड़ है। ये तकलीफ तो होता रहते हैं, इन लोगों को चाहिए। ये आप समझते हैं कि इस गंदगी की वजह से जो वोट कास्ट करने की शरह है, लोग कम आएंगे, कुछ शरह पे असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? इधर आने जाने का तो मसला होगा ना, लेडीज भी आएगा, जेंट्स भी आएगा। ये लड़के ये जो परेशानी होते हैं तो उसको तो क्लियर करना चाहिए। माजी में जो यहाँ पे इलेक्शन हुए तो यहाँ पे कशीदगी वगैरह कोई लड़ाई झगड़े हुए, और आप क्या समझते हैं कि ऐसा कुछ मुतवक्का है यहाँ पे? हाँ हुए, ये मियाँ वालियों के साथ पड्डे मड्डे हुए, ये स्कूल वालों का हुआ था, ये तो होता रहता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी का फौरी बंदोबस्त जो है वो इंतजामिया हरकत में आए करे, और इसके साथ साथ जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो रास्ते हैं वहाँ पे उन आमदोरफ्त को जो है, रास्तों को जो है वो दुरुस्त किया जाए। बारिशें हुई थी और बारिशों के बाद जो ये सूरत हाल है पोलिंग स्टेशनों की, उनके इतराफ की, वो इंतहाई ख़राब दिखाई देती है। जी, न्यू कराची के इलाके अल्लाह वाली से गुजरने वाले नाले ने शहरियों की जिंदगी अजीरन करती है। मजीद जानते हैं मीर कैरियो से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची में। न्यू कराची का ये जो अहम रोड है, यहाँ से गुजरने वाली मेन सड़क है, ये अल्लाह वाली इलाका कहलाता है। इस अल्लाह वाली इलाके में आप देखेंगे मेन सड़क पर जो इससे गुजरने वाला नाला है, ये जो है आज तक अभी तक खुला हुआ है, इसकी सफाई नहीं हुई। इसका जो सीवरेज का पानी है वो सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से सड़क जो है तबाहाली का शिकार है। यहाँ शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ़ होती है, शहरियों को अपने दीगर जो उमूर है वो मुकम्मल करने में भी मुश्किलात का सामना है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि ये बीच सड़क से गुजरने वाला नाला है जो खुला होता है, रात को यहाँ एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, शहरियों के गिरने का ख़तरा होता है, जबकि बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको भी जो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि हालिया बारिशों में जो है इसका पानी जो है सारा रोड पर आ गया, सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सारी सड़क जो है अभी गंद कचरे से भरी पड़ी है और कीचड़ जो है वो मुकम्मल तौर पर सड़क पर आ गया है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से ताहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस पर सफाई नहीं की गई। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है। सर बताएं कि कब से ये रोड की ऐसी हालत है? ये सड़क का ये कब से, जैसे देख रहे हो ना, इसे भी ख़राब था, बिल्कुल वैसे का वैसा चल रहा है। ये पानी गंदगी ये वाउंड दे दे कर बस हाँ करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अभी इलेक्शन है, कल परसों इलेक्शन है, तो क्या मुतालबा रखेंगे? कोई यहाँ वर्क करने के लिए आए, वोट मांगने आए, तो आपने उनसे बातें रखी है? ये भाई बात तो करते हैं, हाँ तो करते हैं, हाजिर करते हैं, मगर करते नहीं है, बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ एक्सीडेंट वगैरह का खतरा होता है, जैसे ये पूरा खुला हुआ है रोड ना सारा, देख रहे हो आप, तो बच्चे वगैरह भी गिरते होंगे कुछ? बूढ़े बंदे रात को आते जाते हैं, भाई ऐसे नहीं गिर जाए, अल्लाह न करे, एक मिसाल है। जी बिल्कुल, ये इलाका जो है अल्लाह वाली इलाका नॉर्थ कराची का इलाका है। ये जो सूबाई असम्बली का हल्का 117 यहाँ लगता है, जबकि कौमी असम्बली का हल्का 244 लगता है। या आपने शहरी की बातें भी सुनी, उनका कहना था कि यहाँ सिर्फ वोट मांगने आते हैं, काम नहीं होता। काफ़ी अरसे से ये नाला खुला हुआ है, सड़क बिल्कुल तबाहाली का शिकार है, आज तक मसाइल हल नहीं हुए। वोट तो देते हैं, लेकिन जो वोट मांगने आते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम मसाइल हल करेंगे, लेकिन आज तक इस सड़क का यही हाल है। जैसे हम देखते आ रहे हैं
हैं, काफ़ी अरसा गुजर गया लेकिन आज तक उनके मसाइल हल नहीं हुए। शहरियों का मज़ीद कहना है कि हम उनका मुतालबा है कि इस सड़क को फौरी तौर पर इसकी तमीर कराई जाए, उस नाले पर से जो है कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए ताकि किसी भी जो है ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े या किसी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। जी, मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी का कहना है पीसीबी आइन में निगरान वज़ीर आला के चेयरमैन बनने पर पाबंदी नहीं। मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आगे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी। मज़ीद जानेंगे, मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हमाद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आज जो है पीसीबी चेयरमैन के लिए जो है वोटिंग हुई और इस वोटिंग में जो है मोहसिन नकवी जो बिला मुकाबिल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मोहसिन नकवी ने जो है चार्ज भी संभाले। मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी का कहना है कि पीसीबी आइन में निगरान वज़ीर आला के चेयरमैन बनने पर पाबंदी नहीं है। मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आगे भी पाकिस्तान में क्रिकेट में बेहतरी आएगी। आपको आगाह कराएं अहम खबर से कि मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी का कहना है पीसीबी आइन में निगरान वज़ीर आला के चेयरमैन बनने पर पाबंदी नहीं। मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सरकारी इमलाक पर इंतखाबी बैनर्स लगाने वाले उम्मीदवारों की शामत आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी बताइए। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में शहर भर में जो सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर सियासी बिल बोर्ड लगने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। आज इलेक्शन कमीशन के जो लॉ अफसर हैं वो अदालत में पेश हुए, दीगर वकला भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस नदीम अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर से इस्तफसार किया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया गया या नहीं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर ने अदालत में बताया कि तमाम मुतल्लिका हुकाम को जो है वो डायरेक्शन दी गई है और जहाँ जहाँ बैनर्स पाए गए हैं वो हटा दिए गए हैं। जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या उन सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी हुए हैं या क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बड़ी बदकिस्मती के साथ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अदालत ने तमाम हुकाम पर बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अदालती अहकामात पर कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी सियासी बैनर्स अवामी मकामात पर बिल बोर्ड पर लग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अदालत ने जो है आइंदा समाअत पर, यानी कि जो समाअत कल तक मुलतवी कर दी है, उसमें कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है, उनको ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। अब इस दरख्वास्त की जो समाअत होगी वो कल होगी। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि अब जो है अंडर बाईपासेस में भी वहाँ पर सियासी इश्तहारात और बैनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। NA 237 के इलाके खुदादाद कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल संगीन हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे हमना निसार से। जी, इस वक्त मैं कौमी असेंबली के हल्का NA 237 जबकि सूबाई असेंबली का हल्का 103 खुदादाद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ सीवरेज के संगीन मसाइल के बाद यहाँ के जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सकें कि यहाँ पर बारिश के बाद घरों की क्या कंडीशन है, देख सकते हैं कि घर में जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें पूरा पानी जमा है और ये पानी जमा होने की जो वजूहत ये हैं कि यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है, जिसके बाद पानी जो है निकासियाब का निज़ाम जो है यहाँ पर बिल्कुल दरहम बरहम है और बारिश का पानी ताहाल 3 दिन गुजरने के बाद भी घरों पर मौजूद है। यहाँ पे इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, मुझे बताइएगा किस तरह के मसाइल हैं यहाँ पर? यहाँ से जब से बारिश आई है, बारिश का पानी अंदर खड़ा हुआ है, हमारे घर के अंदर मौजूद है इस टाइम, और गटर लेन है तो वो सारी बंद पड़ी हुई है। और हमने जमात इस्लामी के हमारे भाई हैं हमारे पड़ोस में, उनको सुबह से अपील की है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी पहुँचे हैं, वो गटर लेन को अभी साफ़ करेंगे। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसले हैं पानी के, पूरे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ, गटर लेने बंद हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सर, इंतखाबात में कुछ 1-2 दिन रह गए हैं, मसाइल इतने ज़्यादा हैं, अवामी मसाइल हैं, किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, कौन आपके मसले हल करेगा? अवामी मसाइल कितने ज़्यादा हैं आपके इलाके में?
देखें जी, ये हमारे यहाँ तो सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, जमात इस्लामी भी है और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, मगर अब कोई काम करके तो दिखाए। किसको देंगे वोट? कोई वो नहीं है कि कोई भी यहाँ अब वोट लेने के बाद ये लोग गायब हो जाएंगे। आजकल तो कहीं ना कहीं नज़र भी आ जाते हैं, मगर इलेक्शन के बाद ये लोग नज़र नहीं आते। अब ये देख लें, ये सब ड्रेन सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ इस वक्त अभी खुदादाद कॉलोनी के जो शहरी हैं वो मौजूद हैं। नुज़ीर ने बताया कि यहाँ पे सेवरेज की जो अब तक सूरत हाल है, जिसके बाद जो है यहाँ के शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इलाके में पूरी जगह, जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप सेवरेज के मसाइल की बात की जाए, यहाँ पे इलाके के मसाइल की बात की जाए, तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे शहरी हैं, अपने किसी भी सियासी जमात से कोई उम्मीद की वाबस्ता नहीं है। कहते हैं हर कोई आता है, हर कोई इनके मसाइल सुनता है, मगर इलेक्शन के बाद कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद जो है सूरत हाल ऐसी रहती है। जी, बारिश के बाद PCHS की फर्नीचर मार्केट में गटर उबल पड़े हैं। इस पर मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहरा फैसल नर्सरी फर्नीचर मार्केट पर। बारिश के बाद यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। जो बारिश का पानी है, जिस दिन यहाँ बारिश हुई थी तो दुकानों के अंदर तक जो है वो पानी दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से जो फर्नीचर मार्केट में जो दुकानें हैं उनका जो अंदर फर्नीचर है वो, और साथ ही साथ जो इनके मैटर्स है वो ख़राब हुए, जो लाखों रुपए तक का इनका नुकसान हुआ है। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको ये दिखा सकते हैं कि जो इस वक्त यहाँ की जो सूरत हाल है, इन गलियों की आप देख सकते हैं कितना सेवरेज का यहाँ पर गंदा पानी जमा है। कारोबार जो है पिछले कोई 4 से 5 दिन से जब से बारिश हुई है वो यहाँ पर मुतासिर हो चुका है। कोई कस्टमर यहाँ पर इस गंदगी की वजह से आना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चलने तक की जगह नहीं है। सामने अगर आप मेरे दुकान देख सकते हैं, ये मैटर्स आप दिख रहे हैं, तो ये मैटर्स जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं कि इतनी ऊपर दुकान होने के बावजूद जो है पानी अंदर तक गया है और ये मैटर्स अंदर जो है वो तैर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ दुकानदार, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, जिस टाइम ये बारिश हुई थी 8 बजे का टाइम था रात का, तो अगले दिन क्या सूरत हाल थी इस मार्केट की? मार्केट खुली थी या फिर यही सूरत हाल थी? मतलब मार्केट अभी आज भी हमें ऐसे ही देख रहे हैं कि कस्टमर यहाँ पर नहीं है। सर, ये अभी तकरीबन जो है ना, ये 4 से 5 दिन ऐसे ही रहेगा। कोई ना दुकानदार इधर जो है दुकान खोलेंगे, ना वो अपनी सफाइयों में लगेंगे। जिसका नुकसान हुआ है वो बेचारे अपना सामान उठा के बाहर फेंकेंगे। और हर साल यही होता है, हर साल जब बारिश होती है तो यही मसला आन खड़ा होता है। ये एक दिन का काम नहीं है, हर साल। लोगों ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की? हर साल हो रहा है, कोई सेवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं, गटर उबल आते हैं, कोई ऐसा इंतजाम है कि सेवरेज की लाइनें ठीक हों ताकि इस तरह माहौल ना बने? सर, कई अगर टीवी वाले आए, प्रेस वाले, कई अखबार वाले आए, जिसमें हम लोग यही हर साल यही कहते रहते हैं कि भाई ये इसका निज़ाम जो है ना दुरुस्त करो, लेकिन कोई वो नहीं है, हल नहीं है। जो भी आता है यही सुन के और चला जाता है। देखिए, ये सूरत हाल है इंतहाई। यहाँ पर लोगों का जो है लाखों रुपए तक का यहाँ पे नुकसान हुआ है, फर्नीचर ख़राब हुआ है, मैटर्स जो है यहाँ पे दुकानों के अंदर बता रहे हैं कि पानी में तैर रहे थे। ऊंची दुकानें होने के बावजूद भी जो है वो पानी कई फुट ऊपर आने के बाद जो है दुकानें के अंदर दाखिल हुआ है। लेकिन जो है इलेक्शन को पिछले 5 साल गुजर गए यहाँ पर, लेकिन मसाइल गई वहीं के वहीं है, जू के तू हैं। कोई नहीं आता, सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो उम्मीदवार है वोट लेने तो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मसाइल खड़े होते हैं तो यहाँ पर कोई जो है इनके मसाइल सुनने के लिए नहीं होता। ये अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ पे पानी की निकासी कर रहे हैं ताकि यहाँ की सफाई जो है फौरी तौर पर हो जाए और जो कस्टमर हैं वो फिर यहाँ पर आना शुरू हो और इनका जो कारोबार 4 से 5 दिन से जो है वो मुतासिर हो रहा है, ताकि कस्टमर यहाँ पर आए और उनका कारोबार जो है दोबारा से चल सके। जी, शहर कराची में इंतखाबी मुहिम के नए रंग, पीपल्स पार्टी का म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नमान गुल से। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में इंतखाबी मुहिम जो है वो तेज़ कर दी गई है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से। पीपल्स पार्टी भी इसमें जो है वो आगे है और पीपल्स पार्टी की जानिब से आज म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। मिलेनियम मॉल के करीब सुर, ताल और साज से जियालो का लहू गरमाया जाएगा। NA 236 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुजम्मिल कुरैशी और PS 100 से हैदर अली उमरानी जियालो के दरमियान मौजूद होंगे, अपनी इलेक्शन मुहिम भी करेंगे और साथ साथ जो है वो सुर, ताल और साज से जियालो का लहू भी गरमाया जाएगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इसमें मौजूद होगी। गुलशन इकबाल और इसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर व दीगर इलाके जो NA 236 में आते हैं वहाँ से कारकुनान इसमें शिरकत करेंगे। जी, आप हमें अपडेट कर रहे थे नमान को, आपका शुक्रिया।